Hi everyone. In this video, we are going to start with the chapter Lines and Angles, that is chapter number 6. Okay. Now, when we talk about lines and angles, though the base had been created in class 7th, but now we are going to proceed from there on. But before proceeding, obviously we need to revise. And in this video, we will be revising vertically opposite angles and linear pair. Okay. So when we talk about vertically opposite angles and linear pair, we will be understanding them, what are they, and along with that, we will be doing relevant examples from NCERT. Okay, so let's start. First, what you can see on the screen is the types of lines. क्योंकि जब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर की बात करते हैं तो उसको करने से पहले हमें ये समझना भी जरूरी है कि what are intersecting lines and what are parallel lines, right? So let's begin for that. Okay, now when we talk about intersecting lines का मतलब होता है two lines which actually cut each other, मतलब एक दूसरे को पास करती हैं. Okay, अब यहाँ पे what I have made that there are two lines, let them be AB and PQ. Okay, they both are meeting at one point. कभी भी दो लाइंस जो होती हैं वो या तो देयर आर थ्री ऑप्शंस, एक पॉइंट पे मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, या दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस. वो हमें अभी नहीं करना. ओके, तो दीज आर टू लाइंस विच आर मीटिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट. लेट दिस पॉइंट बी O and this is called as intersection point because इसी लाइन पे दोनों मीट कर रही हैं, राइट? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट. And when the two lines meet exactly at one point, they are called as intersecting lines. Okay. Now, the second one, they are called as parallel lines. And parallel lines means when we have two lines which are running opposite to each other and they are never going to meet. जब क्लास 7th में पैरेलल लाइंस का समझाते हैं तो उस वक्त एक एग्जांपल सबसे ज्यादा दिया जाता है विच इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक. क्यों? क्योंकि वो कभी भी नहीं मिलते. इट इज जस्ट लाइक ये रेलवे ट्रैक है, राइट? इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, राइट? वो हमेशा एक बराबर का डिस्टेंस दोनों के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करता है. एंड दैट इज व्हाट द पैरेलल लाइंस आर. दैट मीन्स दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट. अगर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 1.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर ही होगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंगल्स जो हमें मेन इस वीडियो में करना है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज vertically opposite angles. And when we talk about vertically opposite angles and linear pair जो हमें इस वीडियो में करना है, they both are actually with respect to intersecting lines. We are going to do another video based on the parallel lines and the angles originating from parallel lines. Okay, तो यहाँ पे हम सिर्फ intersecting lines के angles की बात करेंगे. Okay, now the first one being vertically opposite angles. Okay, let me draw intersecting lines once again. These are two intersecting lines. Now they are meeting at one intersection point which is labeled as O. हमारी lines हैं AB और PQ. Okay, these are line segments. Line segments का मतलब end पे dots हैं. They cannot grow bigger. Okay, अब vertically opposite angles क्या होते हैं? अगर AB line और PQ line यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रही है, let that angle be 1, and then AB and PQ will form another angle just opposite to the particular angle formed above. Okay, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, या फिर there is going to be an angle on the left and then angle on the right. Vertically opposite मतलब देखो, vertically का मतलब vertical means standing, right? सो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब अगर एक चीज नॉर्थ में है तो दूसरी चीज साउथ में है. एंड देन देयर इज अनदर पेयर आल्सो ओवर हियर व्हिच इज लाइक एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है. ओके, तो यहाँ पे होता क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर बेसिकली ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड ओवर हियर that angle 1 equals angle 2 and angle 3
इक्वल्स एंगल 4, ये 3 है और ये 4 है, राइट। 1 के ऑपोजिट 2 है तो वो हमेशा इक्वल है, 3 के ऑपोजिट 4 है तो वो हमेशा इक्वल है, एंड दिस एग्जिस्ट ओनली इन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ओके, नाउ इफ टू लाइंस, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास एक थ्योरम है एनसीईआरटी का, दैट इज थ्योरम 6.1, एंड इट सेज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और यही चीज अभी हमने यहाँ पे समझ ली है, राइट। अब थ्योरम है, इसका मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे और उसमें जब हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में लिखना होगा, सो वी ऑलवेज हैव टू राइट अ रीजन अलोंग विद दैट। सपोजिटली इस तरह के कुछ फिगर है जो ऊपर मेंशन्ड है, एंड वी नीड टू यूज दैट 1 is equals to 2. So what I will be doing over here, I will write angle 1 equals to angle 2, and then in the bracket we will write VOA. Vertically opposite angles, there is a short form I have written over here, VOA, and it is everywhere accepted. आपको पूरा लंबा सा लिखने की जरूरत नहीं है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सिर्फ VOA लिखोगे काम चल जाता है, एवरी टीचर एक्सेप्ट्स इट, बिकॉज सब समझते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए BOA इज एक्सेप्टेबल। ओके, देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्टिकली ऑपोजिट, and this is example number 1 from NCERT. Okay, the question says in figure 6.9, which is given over here, lines PQ and RS intersect each other at point O. अब यहाँ पे हमें दिया है कि लाइन PQ and RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। इसी तरह की फिगर मैंने समझाई थी जब वर्टिकली समझाया था, राइट। नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज इफ द एंगल POR कौन सा है, ये वाला, is to angle ROQ, that is this one, and they are in the ratio of 5:7. हमें रेशियो गिवन है POR और ROQ का, and they are given as 5:7. We are supposed to find all the angles. Okay, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट। What we are going to do over here is, देखो आपको दो एंगल्स गिवन है, उनका रेशियो गिवन है, राइट। So what we are going to use over here is vertically opposite angles for sure, लेकिन उससे पहले we are going to start by taking a ratio factor. रेशियो फैक्टर क्या होता है, जब भी हमें कोई दो चीजें रेशियो में गिवन होती है, हम उसके लिए रेशियो फैक्टर एक एक्स वेरिएबल को यूज करते हैं, ओके। और जब उसको यूज करते हैं तो वो क्या बनता है, ये देखो, नाउ आई विल टेक दैट लेट एंगल POR, और बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट एक्स, let x be the ratio factor. जब भी आप कोई वेरिएबल रेशियो फैक्टर के लिए लोगे, यू हैव टू मेंशन अबाउट इट, ओके। नाउ देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल्स टू 5x. इसका ये मतलब है कि जो हमें रेशियो गिवन था 5:7, नाउ एंगल POR इज 5 पार्ट्स ऑफ दैट, और x साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। And similarly, angle ROQ will be equals to 7x, right? Okay. अब यहाँ पे एक important चीज, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल POR और ROQ उस एक स्ट्रेट लाइन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही लाइन से निकल रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा, क्यों होगा, इट इज लीनियर पेयर, इट इज लीनियर पेयर, राइट। जब एक ही लाइन से दो एंगल्स निकलते हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो एंगल्स हैं और उनका सम हमेशा 180 होता है। POR की वैल्यू क्या है, इट इज 5x, ROQ की वैल्यू क्या है, 7x, सो दिस इज 180, राइट। अब ये क्या बन गया, एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई x की टर्म्स में। So this gives us 12x equals 180. That means x equals 180 divided by 12, and therefore x comes out to be 15. ये रेशियो फैक्टर की वैल्यू आई है, एंगल की वैल्यू नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पे डिग्री ऊपर नहीं मार्क करेंगे, ये x की वैल्यू है, राइट। तो उससे हमें क्या मिलता है, दैट एंगल POR was equals to 5x. That means 5 into 15,
सो दिस इज 75 डिग्रीज। अब यहाँ पे डिग्रीज लगेगा क्योंकि ये एंगल की वैल्यू है। और दूसरा क्या था, एंगल आर ओ क्यू, इट वॉज 7x, दैट मीन्स 7 times 15 which is 105. ओके, अब 105 के साथ भी डिग्री लग गया, राइट। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन एंड द फिगर, उन्होंने कहा है फाइंड ऑल द एंगल्स। हमने अभी ये दो एंगल्स निकाले, राइट। अब पी ओ आर, ये वाले एंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इट इज एंगल एस ओ क्यू, दैट इज एंगल एस ओ क्यू। तो पी ओ आर और एस ओ क्यू इक्वल हो जाएंगे, राइट। नाउ सिमिलरली एंगल आर ओ क्यू के ऑपोजिट है एंगल पी ओ एस। सो एंगल आर ओ क्यू और पी ओ एस एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। एंड द रीजन इज गोइंग टू बी vertically opposite angles. Okay, so let's write down about them. Angle POR equals angle SOQ, right? So therefore it is also equals to 75 degree. रीजन हम दोनों का रीजन उन दोनों एंगल्स का सेम है, तो हम दोनों के रीजन को एक साथ लिख देंगे, ओके। एंड सिमिलरली एंगल ROQ equals angle POS equals 105 degrees. अब यहाँ पे we will collectively write the reason vertically opposite angles and that's all. हमने चारों एंगल्स निकाल दिए। You can see POR, SOQ, ROQ, POS, चारों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। This was a question which they wanted the values. It is not a proving question, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, ओके। Now the next topic is linear pair. All the linear pair थोड़ा हमने पीछे यूज किया पीछे वाले क्वेश्चन में। However, I'm going to explain that for again in detail now, right? जब हम linear pair की बात करते हैं, एक straight line ली पहले, right? Then there is a line which is actually meeting that, intersect कर रही है, right? लेकिन when we talk about linear pair, it is going to be a pair of angles. Pair का मतलब दो चीजें, linear का मतलब एक लाइन, तो एक लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज व्हाट लीनियर पेयर इज। और हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ओके, अब जो हमारी ये मेन लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी, ओके। अब सॉरी, मेन लाइन को हम नाम दे रहे हैं ए बी, और ये जो लाइन हमने बीच में मीट करी है, लेट इट बी पी क्यू, ओके। अब पी क्यू ने क्या किया, ए बी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और जो एक लाइन का कोई भी एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180, तो उसको उसने क्या किया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सो 1 and 2, ओके। लेकिन अगर आप लाइन को देखो तो लाइन पे ये पॉइंट अगर P एग्जिस्ट करता था तो इसमें कितना एंगल था, 180 था, राइट। अब 180 पे क्या हो गया, एक लाइन तो फॉर्म हो गई, लेकिन दोनों एंगल्स तो अभी टुगेदर तो दे आर स्टिल 180, राइट। उन दोनों का सम इकट्ठा तो 180 ही है, अकेले अकेले कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन अगर हम उसको कलेक्टिवली देखें दैट इज स्टिल 180, बिकॉज वो एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर पेयर, इन दोनों का सम एंगल 1 और 2 का सम 180 होना चाहिए, राइट। एंड ये नीचे देखो एक्सियम 6.1, it says if a ray stands on a line, हमारी रे कौन सी है, PQ, and it is standing on the line AB, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180. जो चीज अभी ऊपर हमने फिगर से समझी वही चीज नीचे वर्ड्स में लिखी गई है, and it is called as an axiom. तो इसके अकॉर्डिंग we can write mathematically angle 1 plus angle 2 equals 180 degree. राइट, आर वी क्लियर अबाउट इट? सो एक्सियम है, और जब भी हम ये चीज यूज करेंगे ब्रैकेट में वी कैन राइट लीनियर पेयर, हम इसको ये रीजन देंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन, देयर इज अनदर एक्सियम, अभी हमने 6.1 किया, अब 6.2 है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ओके, ये देखो पहले क्या गिवन था हमें, पहले इन्होंने हमें बोला था
कि अगर एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे है तो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, राइट? उसमें हमें सम मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है देन दे द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। मतलब दिस इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ अ लीनियर पेयर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन विद द फिगर। अब ये देखो, फिगर तो वही बनेगी, ओके। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। ये हमें पहले की बने, राइट? तो देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, नॉन कॉमन आर्म का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट AP एंड PB, AP एंड PB, क्योंकि ये दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं है। एंगल 1 में AP एग्जिस्ट करता है, एंगल 2 में PB एग्जिस्ट करता है, ओके। एंगल 1 के लिए AP एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल 2 के लिए PB एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दे आर नॉन कॉमन, मतलब दोनों शेयर नहीं कर रहे एक आर्म। क्योंकि अगर आप इसको देखो, PQ को देखो, तो ये तो दोनों एंगल्स शेयर कर रहे हैं, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट AP एंड PB फॉर्म अ लाइन। मतलब AP एंड PB दे टुगेदर फॉर्म वन लाइन, एंड दैट इज ऑब्वियस, हमें समझ आ रही है। लेकिन ये एक्सियम हमारे बहुत यूज आएगा जब हम एक्सरसाइज के प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा दैट प्रूव इट इज अ लाइन। आंखों से नजर आ रहा है लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है, और उस जगह पे ये एक्सियम काम करता है, ओके। क्लास 9 के इस चैप्टर में यू विल सी कि जो चीजें आपको पहले से भी पता है ना, अब उसका कन्वर्स हम समझेंगे और वो कैसे यूज होगा क्वेश्चंस में। तो इस चीज पे ध्यान से वर्कआउट करो एंड डू पे अटेंशन व्हाइल लिसनिंग टू दी क्वेश्चंस, ओके। नाउ एग्जांपल 2। अभी हमने लीनियर पेयर भी समझ लिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी समझ लिया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जांपल 2। In figure 6.10, ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and SOQ respectively. यहाँ पे हमने क्या गिवन है, पहले OS एक रे है which is standing on the line POQ, right? अब एंगल POS को OR बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड देन OT is another ray which is dividing angle SOQ in further two equal parts, मतलब वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। And if angle POS is X, we are supposed to find ROT। हमें ROT की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में हमें X गिवन है, then it means there is high probability कि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो X की टर्म्स में होगा। हो सकता है कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, बट हो सकता है वो X की टर्म्स में भी आ जाए, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। देखो, हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल मार्क द एंगल्स। मैं हमको नंबर दे दूंगी। नंबर देने से क्या होता है, इट बिकम्स इजी टू रेफर and we don't need to use 3 letters every time we want to refer for a angle, okay? तो अब यहाँ पे हम क्या, हमारे पास एंगल्स मिल गए 4, 1 2 3 4। गिवन क्या है हमें, we are given that angle 1 equals angle 2, क्यों, OR बाइसेक्ट कर रहा था, and similarly angle 3 equals angle 4, ये हमें गिवन है। I will mark this 1 and 2। मैंने उसको एडवांस में मार्किंग करके रख दी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो यूज होगा, अभी वो यूज होगा, राइट? एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चारों एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, राइट? एक ही लाइन पे। व्हाट आई कैन राइट एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स 180। कैसे, क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर। बिकॉज अभी हमने एक्सियम 6.1 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड करेगी देन द टू एंगल्स फॉर्म्ड आर गोइंग टू सम अप टू 180, राइट? सो वी आर यूजिंग दैट। अब POS को हम कैसे लिख सकते हैं, POS को वी कैन राइट POS हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स 1 and 2, so I can write POS as angle 1 plus angle 2। now SOQ is being divided in 3 and 4, तो SOQ को we can write as angle 3
प्लस एंगल 4 इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ पे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमने फिगर बनाई और फिगर में हमने मार्क कर दिया 1 2 3 4। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्वेश्चन के अंदर फिगर इंक्लूडेड है, लेकिन अगर हम उसमें अपनी कोई नंबरिंग कर रहे हैं, कोई मार्किंग्स कर रहे हैं जो हम यूज करेंगे, देन यू नीड टू प्रोड्यूस दैट फिगर अगेन विद योर सोल्यूशन। आपको फिर से वो फिगर बनानी पड़ेगी और 1 2 3 4 मार्क करना पड़ेगा। अदरवाइज जो चेक कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3 और कौन सा 4, राइट? सो नाउ हमारे पास है एंगल 1 वाज इक्वल्स टू 2, राइट? सो 1 और 2 दोनों सेम है। आई कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 2। मैंने 1 की जगह पे भी 2 लिख दिया एंड 3 एंड 4 इक्वल है। सो अब 4 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया एंड दे स्टिल रिमेन 180। इसका रीजन क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम 2 क्यों लिया आपने, दोनों जगह पे 2 2 क्यों लिया और दोनों जगह पे 3 3 क्यों लिया? आपने 1 1 क्यों नहीं ले लिया या 4 4 क्यों नहीं ले लिया? ओके, देयर इज अ रीजन। देखो, हमें आरओटी की वैल्यू निकालनी है। आरओटी में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहे। इसीलिए स्ट्रैटेजिकली हमने 1 को एलिमिनेट कर दिया, 4 को भी रिमूव कर दिया और सिर्फ 2 और 3 की टर्म्स में छोड़ा, राइट? अब एक चीज बताओ, अगर वेरिएबल्स होते और हम लिखते यहाँ पे x प्लस एक्स, तो ये क्या बनता? 2x बनता। और अगर y प्लस वाई होता तो वो 2y बनता, राइट? उसी तरह से ज्योमेट्री में भी जब हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे, इट इज गोइंग टू बिहेव इन द सेम वे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब व्हाट आई वांट टू से, एंगल 2 प्लस एंगल 2 विल बिकम ट्वाइस ऑफ एंगल 2। कंसिडर एंगल 2 एज x, तो x प्लस एक्स 2x बना था। ये बाहर वाला 2 इज 2 का 2x का 2 एंड एंगल 2 इज कंसिडर लाइक x। ओके, नाउ देन एंगल 3 प्लस एंगल 3 becomes twice of angle 3 equals 180। क्लियर? अब अगर हमारे पास हो 2x प्लस 2y, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन आ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस y, right? Similarly, now we are going to take out 2 as a common factor from here and here. So 2 comes out, we are left with angle 2 plus angle 3 equals 180 degree. क्योंकि ये जो 2 है ना, जो एंगल के बाहर है, इट इज जस्ट योर नॉर्मल नंबर। ये नॉर्मल नंबर है, ये एंगल नहीं है, ये नॉर्मल नंबर है, राइट? तो अब क्या मिलेगा हमें? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, व्हेन इट गोस टू द राइट साइड डिवाइड हो गया, राइट? सो वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? दे आर एंगल ROS, it is forming angle ROT, right? So therefore angle ROT equals 90 degree। था ना इजी क्वेश्चन? एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक एक भी स्कूल ऐसा नहीं देखा जिसमें ये पूरे साल में क्वेश्चन एक बार ही ना आए। वेदर यू टॉक अबाउट योर पीरियोडिक, योर मिड टर्म्स, योर फाइनल्स, कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर एग्जिस्ट करेगा आपके सामने इन सम ऑफ द पेपर्स, राइट? नाउ मूविंग ऑन विद द थर्ड एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस वीडियो बिफोर वी मेक अनदर वन फॉर द होल एक्सरसाइज, राइट? नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.1 OP OQ OR, OP OQ OR and OS are 4 rays। वो हमें नजर आ रहा है, चारों की चारों रेज हैं, राइट? प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल्स 360। अब यहाँ पे हमें चारों एंगल्स का सम 360 प्रूव करना है, राइट? ये चीज हमें सिखाई जाती है क्लास 6 में, क्लास 7 में, कि एक पॉइंट के अराउंड क्या एंगल होता है। इट इज ऑलवेज 360 एंड इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। वही चीज अब ये हमसे प्रूव करवा रहे हैं। पहले तो हमने समझ लिया, उसको याद कर लिया, बट नाउ क्योंकि हमें इतनी चीजों का लॉजिक मिल चुका है, तो उसको यूज करके हमें ये चीज प्रूव करनी है, राइट? तो अब हम इस पे कैसे काम करेंगे?
इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है फिगर में। तो इससे ये भी पता चलता है कि सोल्यूशन करने में आपको फिगर ड्रॉ करनी है, और उसके अंदर जब भी हम एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे तो वो आपको वर्ड्स में भी लिखना है, और उसका पहले टाइटल आता है कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्ड जरूर लिखना होता है, और उसके आगे हम लिखेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन like this over here and label this as T. Okay, कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे extend OQ to T such that TOQ is a line. is a line. हमने क्या किया यहाँ पे, TOQ को एक लाइन कंसिडर कर लिया, और इसीलिए हमने OQ को लेफ्ट में एक्सटेंड किया, राइट। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट लिया अपनी तरफ से T, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन देखो वहां पे T एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो इसका मतलब जब आपका फाइनल आंसर होगा उसमें भी T कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। T हम बीच में यूज करेंगे, उसको बीच में ही खत्म कर देंगे, फाइनल आंसर का पार्ट वो नहीं हो सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू मार्क द नंबर्स फॉर द एंगल्स 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा लाइन बनाने की वजह से मेरी पूरी फिगर 5 एंगल्स में ब्रेक हो गई। सो आई जस्ट नंबर देम, उससे मुझे बार बार उनको रेफर करना इजी हो जाता है, राइट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। सिंस TOQ is a line, so angle 1 plus angle 2 equals 180 degree, right? क्या रीजन है, लीनियर पेयर, क्योंकि हमारे पास OP इज अ रे ऑन अ लाइन, तो एंगल 1 और 2 180 होंगे, राइट। अब TOQ लाइन है, TOQ लाइन है, तो लाइन सिर्फ ऊपर के पार्ट के लिए तो नहीं है, नीचे के पार्ट के लिए भी है, राइट। तो अगर ऊपर रे है तो उनका सम 180 है, यहाँ पे नीचे का सम भी 180 होगा, बट द थिंग इज इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट्स ओके। अगर 2 पार्ट है तो उसको लीनियर पेयर कह देते हैं, 3 पार्ट है तो भी तो 180 होंगे, लेकिन उसको कहेंगे क्या, व्हाट डू वी कॉल देम, लेट्स सी। एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब लीनियर पेयर हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, because they are not 2 angles, they are 3 angles, and pair word means 2 angles. तो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो इसलिए रीजन क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट लेंगे तो उसका सम तो 180 होगा ना, चाहे उसमें से 10 एंगल्स निकाल दो, 10 का 10 का सम 180 होगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस मार्क दिस एज 1 एंड दिस एज 2। अब हम 1 प्लस 2 करेंगे, मतलब जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है 1 में और जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है 2 में, उनको ऐड करेंगे, एंड सिमिलरली right hand side of 1 and right hand side of 2 will also get added. तो उससे अब हमें क्या मिलता है, we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 equals 180 plus 180, ये मिल गया हमें, राइट। तो इसका मतलब अब 1 क्या था, एंगल 1 को अब हम नाम देंगे, क्योंकि नाउ वी आर एक्चुअली टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द क्वेश्चन, नंबरिंग ने काम कर दिया, राइट। एंगल 1 का नाम क्या था, एंगल TOP। एंगल 2 का नाम क्या था, एंगल POQ। 3 was एंगल QOR, 4 was angle ROS, and 5 was angle SOT। राइट साइड पे क्या मिला, 180 प्लस 180 दैट इज 360, राइट। अब यहाँ पे मैंने कहा था फाइनल में T नहीं एग्जिस्ट कर सकता, एंड मोreover दिस वाज नॉट द एक्सप्रेशन दैट दे हैड आस्क्ड। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, TOP और SOT को ऐड करेंगे। कमिंग बैक टू द फिगर,
TOP और SOT, इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? POS, right? So let's mark TOP and SOT. We can write them together once again for more clarity. इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, बाकी सबको हम साइड पे रखेंगे. राइट, ये क्या दे रहे हैं? दे आर गिविंग अस एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS equals 360. This was a proving portion. तो एंड में आप लिखोगे hence proved. राइट, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने लीनियर पेयर यूज किया. राइट, इसी तरह से इस वीडियो में वी हैड लर्नड अबाउट, फर्स्ट वी लर्नड अबाउट पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के दो तरह के एंगल्स, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंड लीनियर पेयर. एंड उनके बेस पे वी डिड 3 examples from NCERT 1, 2 and 3. So now the next video is going to be about exercise 6.1, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, and these all questions are going to be based on linear pair and vertically opposite. तो अगर वो वीडियो चाहिए, do subscribe to the channel so that you get a notification when it is uploaded. Happy learning!